Hello everyone, welcome to the syllabus layers. This is part 2 of the video on Union Parliament wherein I'll be covering the UGC net PYQs for the past 12 years. The next question is which one of the following is the correct breakup of the composition of Lok Sabha constituencies? ठीक है, तो ये 2016 का क्वेश्चन है, तो तब की लोकसभा का आंसर दिया हुआ है. द आंसर वॉज 543 सीट्स हैं, उसमें से जनरल 423 और SCR 79. ठीक है, वैसे मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ. अकॉर्डिंग टू द 2008 डिलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर 543 सीट्स रहेंगे टोटल, है ना. उसमें से SC कैटेगरी के लिए देयर विल बी 84 सीट्स रिजर्व एंड फॉर द ST कैटेगरी 47 सीट्स विल बी रिजर्व्ड. ठीक है, सो रिमेंबर दिस डेटा प्रॉपरली, ये वाला एक्यूरेट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया? ठीक है, तो क्या क्या दिए? राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स and the right to restrain others from publishing. This is correct. This is a privilege of the legislature. ठीक है, उसके बाद the privilege of excluding strangers from the house, ये भी सही है. फिर the right to regulate its internal matters, again this is also correct. ठीक है, अपने internal matters regulate कर सकते हैं parliamentarians. फिर the right to punish members and outsiders for breach of privilege, this is also correct. ठीक है, इसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी बीच बीच में होते रहती है कि हमारी जो प्रिविलेजेस हैं दे आर नॉट कोडिफाइड. ठीक है, जो पार्लियामेंटेरियंस के प्रिविलेजेस हैं दे आर नॉट कोडिफाइड, देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर डिस्क्रिशन. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट एंड द आंसर विल बी ऑप्शन 4. वो यहाँ पे दिए नहीं है बट ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, आर्टिकल नंबर भी देख लो प्रिविलेजेस का. इट इज़ आर्टिकल 104 फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड आर्टिकल 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो प्रिविलेजेस होते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर बजट इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया? ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिवीजन है ना, that is responsible for preparing the budget document. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. This was asked in January 2017. The purpose of an adjournment motion is to do which of the following? Seek the leave of the house to introduce a bill, नहीं, this is wrong. Censure the government, नहीं, उसके लिए censure motion होता है. Then propose a reduction in the budget, this is also wrong. cut motion रहता है. फिर draw the attention of the house to a matter of urgent public importance, this is correct. ठीक है, so adjournment motion is to it is an extraordinary device which sets aside the normal business for discussing some urgent public importance का कोई मैटर होता है उसको डिस्कस करने के लिए. ठीक है, next question. The first attempt to confer constitutional status on rural local government was made by which of the following? So the first attempt to confer constitutional status on rural local government was made during Rajiv Gandhi government era, और ये 64th amendment bill आया था, उसके अंडर they had tried to give constitutional status to panchayats. ठीक है, however this bill did not get passed in the Rajya Sabha. So 1992 में जाके PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर 73rd Constitutional Amendment Act came wherein panchayats were given constitutional status. ठीक है, so the 64th Amendment Bill was the first attempt to do to make panchayats constitutional. Now, when were the next question? November 2017 का है. When were the rules regarding department related parliamentary standing committees made in India? So the answer for this is 1989. ठीक है, 1989 में rules were established and first 3 subject committees were also formed. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंटल कमेटी, एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंटल कमेटी और एनवायरनमेंट की डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी
वर फॉर्म्ड इन 1989. ठीक है, रूल्स भी तभी आए थे एंड द फुल सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड इन 1993. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2017 का है. दिस इज एन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. इसमें असर्शन क्या दिया है? द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट रीजन क्या दिया? इट इज इन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेटरी पेमेंट. ठीक है, तो इसका देखो, बोथ द असर्शन एज वेल एज द रीजनिंग आर ट्रू हियर एंड द रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. हमें पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट. तो क्या क्या चीज़ें आते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर में? यू माइट हैव रेड इन लक्ष्मीकांत कि वहाँ पे salaries of Supreme Court judges and salary of the president, all of these are under the charged expenditure and they are not subject to the vote of the parliament. ठीक है, बाकी सारे एक्सपेंडिचर कम अंडर द नॉर्मल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये चार्ज एक्सपेंडिचर का प्रोविजन क्यों दिया गया है वैसे? बिकॉज चार्ज एक्सपेंडिचर्स आर बेसिकली दी ऑब्लिगेटरी पेमेंट्स and thus they cannot be voted upon and thus they ensure the independence of constitutional offices. ठीक है, अगर वो वोट कर पाते तो दे कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिसीजन मेकिंग ऑफ दीज इंडिपेंडेंट ऑफिसेस. दैट इज वाई दे आर नॉट वोटेबल एंड दे आर द चार्ज एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2017 का है. वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी रिमेन इन ऑपरेशन? सो द आंसर फॉर दिस इज इंडेफिनेटली. ठीक है, एक बार डिक्लेयर कर दिया कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी, देन इट्स ऑपरेशन रिमेन्स indefinitely until unless it is removed. ठीक है, so it under article 360 a financial emergency is proclaimed and it continues indefinitely until it is revoked by the president. और इसमें कोई पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं होती है. आफ्टर इट इज़ अप्रूव्ड वंस, इट डज नॉट रिक्वायर repeated parliamentary approvals. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. Arrange the following speakers of the Lok Sabha in chronological order. So सबसे पहले आ रहा है क्या वो you'll have to again, this is a very factual question, therefore what I would suggest you to do is to at least read the list of all speakers along with their tenure का years. At least read them 3 to 4 times. ठीक है, before the examination. स्पीकर्स का भी पढ़ लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स और इफ़ पॉसिबल CJIs का भी पढ़ लेना. ठीक है, बिकॉज इफ़ यू हैव सीन दिस ईयर्स पेपर 2026 जनवरी का, देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस लाइक दिस इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट जून सेशन या नेक्स्ट सेशंस में सच फैक्चुअल क्वेश्चंस में बी रिपीटेड. ठीक है, सो आई जस्ट टेल यू अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ द स्पीकर्स. सबसे पहले एन संजीवा रेड्डी जी थे इन 1967 to 77, from 1967 to 77. Then Shivraj V. Patil ji had become the speaker from 1991 to 1996. Then Manohar Joshi from 2002 to 2004 and then Somnath Chatterjee from 2004 to 2009. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिसंबर 2018 का है. Which of the following committees are helped by the CAG in exercising legislative control over the executive? Legislative control over the executive. This is very simple question. ठीक है, लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. तो इसमें आएगा the public accounts committee is the one which is which helps in exercising legislative control over the executive. ठीक है, और वैसे ये स्टेटमेंट दिया है कि द CAG इज़ द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2018 का है. हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? सो द आंसर फॉर दिस इज पॉल एपलबाई. According to Paul Appleby, the CAG is a
primary cause of widespread and paralyzing unwillingness to decide and to act. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम CAG के वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ फियर इन द माइंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर, और फिर जो गुड एक्शन होता है ना उसको भी वो हिंडर कर देता है. गुड जो यूजफुल एक्शन है इट हिंडर्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड नॉट हैव बीन एनी पोजिशन ऑफ CAG इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है CAG हिंडर्स एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव. नेक्स्ट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा. तो क्या क्या दिया, नॉट मोर देन 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. हाँ, ये दिस इज करेक्ट. ठीक है, उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पुडुचेरी इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है पुडुचेरी एज वेल एज दिल्ली का, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड. देन थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ स्टेट्स, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, थर्ड शेड्यूल इज फॉर ओथ्स, और फोर्थ शेड्यूल है विच डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ स्टेट्स, दिस इज करेक्ट. एलोकेशन ऑफ सीट्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट, सेकेंड एंड द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, सो ये पूरा क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है, बट आई विल जस्ट टेल यू द आंसर, उसके बेसिस पे यू नो कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था. सो दूसरे दूसरे वीटोज़ के नाम दिए एंड वी आर सपोज टू टेल कि इसमें होता क्या है. सो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, आई विल जस्ट टेल यू, इट इज़ द पावर टू से नो. देयरफॉर अगर प्रेसिडेंट वांट्स टू से नो, दिस इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, कीप दैट इन माइंड. ठीक है, बट अंडर दिस द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट असेंट टू अ बिल. ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं ये वाले बिल को वी विल नॉट बी पासिंग. ठीक है, नॉट डिस्क्रीट, दिस इज नॉट अ डिस्क्रीट डिस्क्रिशनरी पावर. ठीक है, नॉट डिस्क्रिशनरी. ये कब होता है वैसे, बेसिकली मैं बता देती हूँ. जैसे कि कोई एक गवर्नमेंट थी, इट वॉज इन पावर, है ना, और फिर दूसरा इलेक्शन होके न्यू गवर्नमेंट हैज़ कम, बट इसका जो इसने पास करा था कोई बिल, दैट इज स्टिल विद द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो इन दैट केस दिस गवर्नमेंट जो न्यू लोकसभा न्यू गवर्नमेंट आई है, दे कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट कि आप डू नॉट गिव असेंट टू दिस बिल. ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट वीटो तब यूज़ होता है. ऐसे नहीं होता है कि प्रेसिडेंट का मन हुआ कि मेरे को अब नहीं देना है तो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं रहेगा. देयर इज़ नो डिस्क्रिशनरी पावर इन दिस केस. ओनली इफ द न्यू गवर्नमेंट सेज के नहीं पास करो तब ऐसे होगा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिफाइड वीटो. इसमें क्या होता है, इट इज़ ओवर रिडन बाय अ मेजोरिटी. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वीटो विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सस्पेंसिव वीटो. एक सेकेंड, लेट मी सी. क्वालिफाइड वीटो, देखो क्वालिफाइड वीटो में बेसिकली क्या होता है, जैसे एब्सोल्यूट वीटो में इफ द प्रेसिडेंट सेज नो देन द बिल कैन नॉट बी रीपास्ड. हाउएवर इन द क्वालिफाइड वीटो, if the president rejects the bill, still it can be overridden by the parliament. ठीक है, दिस प्रोविजन इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया. यूएसए वगैरह में शायद होती है ये, हाँ यूएसए में दिस इज कॉमनली यूज्ड, बट दिस प्रोविजन इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया. तो इवन इफ द प्रेसिडेंट सेज नो, द पार्लियामेंट मतलब उनका जो लेजिस्लेचर है, दे कैन अगेन पास द बिल विद अ majority and the bill will become an act. नेक्स्ट सस्पेंसिव वीटो में बेसिकली द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन. ठीक है, तो इफ़ ही फाइंड सम प्रॉब्लम विद द बिल, ही कैन रिटर्न इट फॉर द रिकन्सिडरेशन बाय द बोथ द लेजिस्लेचर्स. ठीक है, फिर पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो में क्या होता है, दैट द प्रेसिडेंट विल टेक नो एक्शन. ठीक है, वो बस बैठे रहते हैं ऐसे लेके बिल को, एंड ही डज नॉट गिव द असेंट नॉर डज ही रिजेक्ट, या मतलब
एब्सोल्यूट वीटो भी नहीं यूज़ करते, वो बस लेके बैठे रहते हैं इनडेफिनेटली, ठीक है। सो इंडिया में पॉकेट वीटो भी प्रेजेंट है। Next, so that is all for this video. Thank you. Kindly like, share, and subscribe to our YouTube channel if you found this video helpful. You can also follow our Telegram channel for any updates. Kindly comment on our videos regarding any content suggestions which you may have. Thank you.